Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss practical of chemistry from first year, and our topic is element detection. And in element detection, we have to detect 5 elements from 5 different organic compounds, and elements to be detected are nitrogen, sulfur, chlorine, bromine, and iodine. In these type of practicals, we will be given any organic compound in which any of the element present, that may be nitrogen, that may be sulfur, that may be any halogen like chlorine, bromine, and iodine. And we have to detect these elements from that organic compound. यानी कि एलिमेंट डिटेक्शन में टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे और 5 एक्सपेरिमेंट्स में 5 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिए जाएंगे, जिसमें से हम 1 बाय 1 ये एलिमेंट्स डिटेक्ट करेंगे, जो कि नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। और इसी वजह से इसको एलिमेंट डिटेक्शन का नाम दिया गया है। अच्छा, इसकी थ्योरी कुछ इस तरह से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जैसा कि आपको पता है। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनती है? एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। और तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसी तरह की बॉन्ड बनती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। और कोवेलेंट बॉन्ड जब होती है तो उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद है, नाइट्रोजन या सल्फर या कोई हैलोजन, तो उसको डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट लिंकेज होता है। और कोवेलेंट लिंकेज की वजह से ये डिसोसिएट नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते। नाइट्रोजन टूट के अलग नहीं हो सकता, सल्फर टूट के अलग नहीं हो सकता, और हैलोजन्स भी डिसोसिएट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आयनिक कंपाउंड के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आयनिक कंपाउंड में। और वो कन्वर्ट किस तरह से होगा? जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे, सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड के अंदर। और आयनिक कंपाउंड इजीली डिसोसिएट हो सकता है, और डिसोसिएशन के बाद इजीली उसमें से नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are those compounds in which atoms are attracted through covalent bond. And covalent bond is the bond that is formed due to mutual sharing of electrons. If there are some elements like nitrogen, sulfur, and halogens like chlorine, bromine, या iodine present in organic compound, it is very difficult to detect these elements due to covalent bond, because they cannot be dissociated, because usually ionic compounds can be dissociated in cations and anions. ionic compound dissociate हो जाते हैं
पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस में और नेगेटिवली चार्ज एनाइंस में, एंड सेपरेटेड और अलग अलग हो जाते हैं. बट कोवेलेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिसोसिएटेड, and nitrogen, sulfur, chlorine, bromine and iodine cannot be detected. It is difficult. So, first the organic compound is converted into ionic compound. Organic compound को या covalent compound को convert करेंगे हम ionic compound के अंदर by fusing the compound with sodium metal. Sodium metal के साथ इसको fuse करेंगे. After fusing with sodium, they can easily be dissociated, and after some experiments, they can easily be detected. After fusing with sodium, they are converted into ionic compound, and ionic compounds can easily be dissociated. Ionic compound dissociate हो जाते हैं positive और negative cations and anions में, so they can easily be detected. If organic compound contain nitrogen as an element, then it will be converted to ionic compound as sodium के साथ ये fuse होके organic compound sodium plus carbon plus nitrogen ये sodium cyanide में convert हो जाएगा. Sodium cyanide is an ionic compound. यहाँ पे organic compound सोडियम के साथ फ्यूज होके रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो गया. And if organic compound contains sulfur as an element, then it will be converted into ionic compound as sodium plus sulfur. Sodium sulfide बनाएगा. If organic compound contain any halogen like chlorine, bromine and iodine, then after fusing with sodium metal, it will be converted into ionic compound as sodium plus halogen, sodium halide बन गया. This is also an ionic compound. And if halogen is chlorine, then sodium chloride is formed, that is ionic compound. If halogen is bromine, then sodium bromide is formed, that is also ionic compound. And if halogen is iodine, then sodium iodide will be formed. And these all are ionic compounds. After fusing with sodium metal, sodium iodide is formed, sodium bromide is formed, sodium chloride is formed, and sodium sulfide is formed, and sodium cyanide is formed. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होके आयनिक कंपाउंड में चेंज होगा. हाउ टू फ्यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम एंड मेक इट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है, उसको आयनिक कंपाउंड बनाया जाता है. इसको एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे. क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं. दिस इज फ्यूजन ट्यूब and we have to take some amount of organic compound and a piece of sodium metal in it. Take some amount of organic compound and piece of sodium metal in fusion tube. Fusion tube के अंदर हम दोनों चीज़ें डाल देते हैं, organic compound भी और sodium metal भी. Hold fusion tube with holder and heat the fusion tube. अब इसको हीट करेंगे हम यहाँ पे. हीट जेंटली आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, वरना फिर ये बर्स्ट होके बाहर आ सकता है. Hold fusion tube with holder and heat the fusion tube. Heat it gently until it is molten and dried. इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट करेंगे यहाँ तक कि वो फ्यूजन ट्यूब के अंदर मेल्ट हो जाए और ड्राई हो जाए, और उसके बाद उसको
ठीक से हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फ्यूजन ट्यूब रेड हॉट हो जाए, उसको ज़्यादा गर्म करेंगे। कंटिन्यू हीटिंग until the fusion tube become red hot. Then break the fusion tube inside china dish that is already filled up with water. इसको रेड हॉट कर लेंगे गरम करके, और चाइना डिश जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर हम इस फ्यूजन ट्यूब को डाल देंगे, और ब्रेक भी कर लें तो अच्छा है। इसको इसके अंदर ब्रेक कर लेंगे। अब चाइना डिश के अंदर हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद इसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे यहाँ तक कि ये इसके अंदर जो पानी था वो बॉयल हो जाए। हीट द चाइना डिश अंटिल बॉइलिंग, देन फिल्टर इट यूजिंग फिल्टर पेपर। जब ये बॉयल हो जाए तो इस फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा के और इसको हम फिल्टर कर लेंगे। अब हमारे पास ये सोडियम एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहेंगे, लेजेन एक्सट्रैक्ट भी कहेंगे, और फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होके हमारे पास आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम के साथ फ्यूज होके ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की सूरत में यहाँ हमारे पास आ गया। इन तमाम टेस्ट को दोबारा चेक कर लेते हैं। फ्यूजन ट्यूब लेंगे, उसमें सोडियम मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और उसको हीट करेंगे यहाँ तक कि रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट होने के बाद इसको चाइना डिश में ब्रेक कर देंगे। चाइना डिश में पानी पहले से भरा हुआ है और इसमें हम ब्रेक करेंगे। उसके बाद इसको हम हीट करेंगे यहाँ तक कि ये बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद इसको हम फिल्टर कर लेंगे। अब हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड आ गया। इसको लेजेन एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है और फिल्ट्रेट भी कहा जाता है और सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब ये एक्सट्रैक्ट हमारे पास रेडी है, जिसमें डिफरेंट टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे और एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे। Dear students, this is up for today. Inshallah, in next lecture we will discuss how to detect the elements present in organic compound. Till then, Allah Hafiz.